Hello, friends, and welcome back to JK Civil Services. You can now download our app from the Play Store, join us on Telegram, and subscribe to our YouTube channel. So, before we proceed further, I want to let you know that in past three episodes, we have already discussed road transport, railway transport, and pipeline transportation. In this video, we are going to discuss water transport and few MCQs and a brief introduction of air transport. Let's proceed. Water transport. वाटर ट्रांसपोर्ट को चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है. इतना ही नहीं, इट इज़ ऑलवेज मोस्ट सूटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की मटेरियल. तो आपको अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ द चीपेस्ट, रेलवे, रोड एंड पाइपलाइन एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, तो आप किस पे टिक करोगे? वाटर ट्रांसपोर्ट. बियॉन्ड दैट अगर आपको ये भी पूछा, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, which of the following is the most suitable for carrying heavy and bulky material? Airline transport, railway transport, road transport and water transport. तो आप किस पे टिक करोगे? Water transport. तो आप समझ गए कि water transport is the cheapest means of transport और ये बहुत ही ज़्यादा suitable है for carrying heavy and bulky materials, क्योंकि ये fuel efficient भी होता है और eco friendly भी होता है. So which of the following modes of transportation is more fuel efficient and more eco friendly? तो क्या आंसर करोगे आप? रोड, रेलवे, पाइपलाइन या वाटर ट्रांसपोर्ट? सो ऑब्वियसली यू विल गो फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट. Water transport is of two types. One is inland waterways, second is oceanic waterways. Depending on कि हम कौन सा पानी यूज़ कर रहे हैं. inland waterways में हम riverine water यूज़ करते हैं, oceanic water में हम oceanic water यूज़ करते हैं. इस वजह से इनको बोलते हैं two types of water transportation. आगे देखते हैं. inland waterways में अगर आपको पता हो, inland waterways was the major mode of transportation before the advent of railways. तो रेलवेज आने से पहले क्या था कि इनलैंड वाटरवेज से मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन होती थी. बट ऐसा क्या हुआ कि इनलैंड वाटरवेज का डिक्लाइन हुआ उसके बाद, बिकॉज ये इनलैंड वाटरवेज का डिक्लाइन इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने कंपटीशन फेस किया फ्रॉम रोड एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट. इतना ही नहीं, diversion of river water for irrigation purpose is also the reason why inland water has declined. Inland waterways have declined. Okay. इसके बाद आप खुद देख लीजिए, आज के टाइम पे it contributes to only 1% of the country's transportation. So now before we proceed further, we need to know about Inland Waterways Authority. Inland Waterways Authority क्या है? ये एक ऐसी अथॉरिटी है which is responsible for the development, maintenance and regulation of national waterways. National waterways का development, maintenance and regulation कौन करता है? Inland Waterways Authority. And this Inland Waterways Authority is a statutory body. आपको पता होना चाहिए, statutory bodies ऐसी bodies होती है जिनको आप बनाते हो under special act of parliament. उनको आप statutory bodies बोलते हैं. So this Inland Waterways Authority has been set under Inland Waterways Authority of India Act 1985. So the responsibility of this body is development, maintenance and regulation of national waterways. तो ये आप याद रख लो, ठीक है. कल क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि Inland Waterways Authority is a statutory body, is a constitutional body, etc. कुछ भी पूछ सकते हैं. This Inland Waterways Authority has recognized many inland waterways as national waterways. तो हम देखते हैं फिर कि पहला नेशनल वाटरवे कौन सा है. पहला नेशनल वाटरवे है प्रयागराज से हल्दिया तक. देखो हम मैप में देखते हैं, ये है प्रयागराज से हल्दिया तक, ये है हल्दिया और ये रहा हमारा नेशनल वाटरवे 1, गंगा भागीरथी हुगली रिवर्स के ऊपर. दिस इज़ मैं आपको बताता हूँ, ये है हुगली रिवर, हुगली रिवर, ये है भागीरथी रिवर और ये है गैंगीज़. ये तो पता ही है आपको, मेजर रिवर तो गैंगीज़ है. इसमें कितने स्टेट्स को सर्व करता है ये? वेस्ट बंगाल को, उड़ीसा को, उड़ीसा को नहीं, वेस्ट बंगाल को, झारखंड को, बिहार को और यूपी को. ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार और यूपी. ठीक है, स्ट्रेच कितना है, लेंथ कितना है इसका? 1620 किलोमीटर्स. तो बस आप ये याद रख लो कि इसका लेंथ कितना है. ठीक है, आगे देखते हैं. नेशनल वाटरवे 2. नेशनल वाटरवे 2 में अगर आप देखेंगे, द स्ट्रेच इज़ बिटवीन सादिया से लेके डुबरी.
सादिया इज़ दिस, ये है सादिया, ठीक है, और ये है डुबरी, ये असम में है, ठीक है, दोनों टर्मिनल्स असम में है। तो कितने स्टेट्स को ये सर्व करेगा वो आप मेरे को बता दो, क्योंकि असम मैंने एक मेंशन किया है इधर, बट इस मैं ये नहीं बता रहा ये कितने स्टेट्स के थ्रू जाएगा, कितने स्टेट्स को सर्व करेगा। पर्पस क्या है एक वाटरवे, इस वाटरवे का मतलब कितने स्टेट्स और है जिनको इस वाटरवे 2 से फ़ायदा होगा। इसका स्ट्रेच कितना है 891। भाई ये मैप देख लेना आप, ये मैप देख के ही आपको याद रह सकता है, अदरवाइज़ ये याद नहीं रहेगा, ठीक है। सादिया से लेके डुबरी तक, सादिया इज़ दिस पॉइंट एंड डुबरी ये पॉइंट है, ठीक है। आगे देखते हैं नेशनल वाटरवेज 3, कोझिकोड से कोल्लम, कोझिकोड से कोल्लम यानी कि केरला में, कोल्लम इज़ द नॉर्दर्न पार्ट, कोल्लम इज़ द सदर्न पॉइंट, और कोट्टापुरम इज़ द नॉर्दर्न वन। कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में आता है ये, कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में आता है कोट्टापुरम, ठीक है। ये है वेस्ट कोस्ट कैनाल पे और है उद्योग मंडल कैनाल पे, आप देख लीजिए उद्योग मंडल कैनाल और चंपाकारा कैनाल, अच्छा 2 कैनाल्स हैं, चंपाकारा कैनाल और उद्योग मंडल कैनाल, वेस्ट कोस्ट पे है ये, ठीक है। तो कोट्टापुरम और कोल्लम कितने स्टेट्स को सर्व करता है, केरला, सिर्फ ये केरला को ही सर्व करता है, इसलिए यहाँ पे एक ही लिखा है मैंने, बट पिछले वाले में मैंने असम लिखा है, बट ये और भी स्टेट्स को सर्व करता है, वो आप बता देना, कमेंट करके बता देना, ठीक है। नेशनल वाटरवे 3 हमने देख लिया 205 किलोमीटर्स, ये भी याद रखना। अभी तक के नेशनल वाटर 1, 2 और 3 में से हमें सबसे लंबा जिसका लेंथ था दैट इज़ नेशनल वाटरवे 1। देखो आगे नेशनल वाटरवे 4 काकीनाडा से पुदुचेरी तक, काकीनाडा से पुदुचेरी तक, दिस इज़ काकीनाडा कैनाल, और काकीनाडा से लेके पुदुचेरी, पुदुचेरी ये है, ठीक है, काकीनाडा से पुदुचेरी का ये स्ट्रेच जो है ये है हमारा नेशनल वाटरवे 4, नेशनल वाटरवे 4 काकीनाडा से पुदुचेरी, और इसमें बहुत सारे कैनाल्स आते हैं बीच में। और फिर है दूसरा स्ट्रेच है इसका, देखो आप, काकीनाडा से पुदुचेरी, दूसरा है वज़ीराबाद से विजयवाड़ा, ठीक है, या विजयवाड़ा से पुदुचेरी, ये सारा एक ही है ना, ये स्ट्रेच सारा एक ही है, ये जो नेशनल वाटरवे है ऐसे बन रहा है ये, वेरी गुड। कौन कौन से रिवर्स इसमें इन्वॉल्व है देख लो आप, कौन कौन से रिवर्स है, 1 इज़ गोदावरी भी है, कृष्णा भी है, और कुछ कैनाल्स है जैसे बुकिंगहैम कैनाल, और है काकीनाडा कैनाल, ये सारे कैनाल्स, जैसे ये कैनाल्स आप याद मत रखो, बट गोदावरी और कृष्णा रिवर्स ये तो याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन से रिवर्स इन्वॉल्व है इसमें, नेशनल वाटरवे 4 काकीनाडा से पुदुचेरी, वेरी गुड, काकीनाडा से पुदुचेरी। आप मैप देख लीजिए, और कितने स्टेट्स को सर्व करता है दैट्स अगेन इंपॉर्टेंट, कितना स्ट्रेच है इसका 1095, अगेन नेशनल वाटरवे 1 अभी भी सबसे लंबा है, ठीक है। तो कितने स्टेट्स को सर्व कर रहा है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी। आगे देखते हैं, ठीक है। नेशनल वाटरवे 5 तालचर से लेके धमरा तक, देखो तालचर से लेके धमरा, देखो ये है तालचर से लेके धमरा, दिस इज तालचर से लेके धमरा एक स्ट्रेच, और दूसरा गोइंग खाली से लेके चार भाटिया, ठीक है। ये बहुत सारे स्ट्रेच से इस नेशनल वाटरवे के, तभी ये सारे मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, नहीं तो ये ऐसे गोइंग खाली से लेके प्रदीप तक भी हो सकता है, क्योंकि ये एक ही स्ट्रेच है ना, देखो ऐसे, ये है एक्चुअली नेशनल वाटरवे का ये इसका स्ट्रक्चर है। तो फिर ये तालचर से धमरा भी है एक स्ट्रेच, चार भाटिया से गोइंग खाली भी है एक स्ट्रेच, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि पॉइंट जैसे तालचर से डमरा ये हमारा नेशनल वाटरवे 5 है। कौन कौन सा रिवर है जिसके थ्रू ये कैनाल ये नेशनल वाटरवे 5 जा रहा है, कौन कौन सा रिवर इसमें इन्वॉल्व है, ब्राह्मणी रिवर, महानदी रिवर, ये है महानदी रिवर, और ईस्ट कोस्ट कैनाल और मटाई रिवर, यार ये 3 रिवर्स है, देखो आप, ईस्ट कोस्ट कैनाल, मटाई रिवर, महानदी रिवर और ब्राह्मणी रिवर, सारे रिवर्स आ गए, और इसका लेंथ 623 किलोमीटर्स। अगेन नेशनल वाटरवे 1 अभी भी सबसे ज़्यादा लंबा है। इट कवर्स द स्टेट ऑफ उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। आगे बढ़ते हैं। नेशनल वाटरवे 6 ये है प्रपोज्ड हमारा, ये नेशनल वाटरवे है ना, ये प्रपोज्ड नेशनल वाटरवे है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये प्रपोज्ड है 121 किलोमीटर्स का है, असम में होके जाता है ये, बट स्टेट्स द नंबर ऑफ स्टेट्स दैट इट इज़ गोइंग टू सर्व, अगेन ये आपको मेरे को बताना पड़ेगा। देखो बराक रिवर पे आता है ये,
लखीमपुर से लेके भंगा तक, ठीक है, लखीमपुर से भंगा दोनों जगह असम की है। बट कितने स्टेट्स को सर्व करेगा वो आप बता दीजिए। ये मेघालय को सर्व करेगा, हाँ ऑब्वियसली करेगा। मणिपुर को करेगा, बिल्कुल करेगा। मिज़ोरम को करेगा, बिल्कुल करेगा। असम को तो करेगा ही। चलो आगे देखते हैं। हाँ सो फ्रेंड्स, इस वाले मैप में आप सारे नेशनल वाटरवेज़ को एक बार फिर से देख लेना, लाइक 1 to 6 जो हमने पीछे डिस्कस किए, और आपको फिर थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा नेशनल वाटरवे किस स्टेट को सर्व कर रहा है। यहाँ पे लिखा है, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। नाउ ओशनिक रूट्स, देखो ओशनिक रूट्स के बारे में आपको मैं पहले बता दूं। देखो ये वो रूट्स हैं जो डिफरेंट ओशंस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, और ये ओशनिक रूट्स को कनेक्ट करने के लिए ना उनको इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के पोर्ट्स होते हैं। एक तो उसमें आते हैं माइनर पोर्ट्स, मेजर पोर्ट्स। हमारे पास 13 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 माइनर पोर्ट्स है। अच्छा, सबसे पहले आप ओशनिक रूट समझने से पहले आप ये समझ जाओ कि हमारे इंडिया में ना टोटल जो कोस्ट लाइन है दैट इज़ अबाउट 7,517 किलोमीटर्स, लाइक टू मच ऑफ लेंथ इज़ दैट। सो उसके बाद हमारे पास 13 मेजर पोर्ट्स है, 200 माइनर पोर्ट्स है, और 13 मेजर पोर्ट्स में से 12 आर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड, गवर्नमेंट ओन्ड, वन इज़ प्राइवेट port, one major port is private port. So these 12 major ports, how do you define the major port first of all? आपको पता है क्या कि मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट में डिफरेंस क्या है? जो हमारे 12 मेजर पोर्ट्स है गवर्नमेंट ओन्ड, और बाकी जो माइनर पोर्ट्स है 200 माइनर पोर्ट्स, इनमें क्या डिफरेंस है? लाइक व्हाई डू वी कॉल देम मेजर और माइनर पोर्ट्स? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ऑन द बेस ऑफ फ्रेट और वॉल्यूम हैंडल्ड बाय दीज पोर्ट्स, उसी के बेसिस पे हम बोलेंगे? मतलब अगर कोई पोर्ट ज़्यादा वॉल्यूम और फ्रेट को हैंडल कर रहा है तो हम बोलेंगे कि भाई ये मेजर पोर्ट हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक पोर्ट है, उसका नाम है मुंद्रा पोर्ट गुजरात में, जो कि एक माइनर पोर्ट है। वो इतना ज़्यादा ट्रैफिक और फ्रेट को हैंडल करता है ना, जितना मेजर पोर्ट्स भी नहीं करते। कई मेजर पोर्ट्स उतना नहीं करते, बट ये स्टिल कैटेगराइज, इट इज़ स्टिल बीन कैटेगराइज्ड इन माइनर पोर्ट, दिस मुंद्रा पोर्ट। ओके, तो क्या क्राइटेरिया है पोर्ट को मेजर या माइनर बोलने का? क्राइटेरिया ये है, आपको पहले तो पता होना चाहिए, जो ये मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट है ना, इट कम्स अंडर कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट समझते हो? कंकरेंट लिस्ट का मतलब ये हुआ कि सेंटर और स्टेट बोथ ऑफ देम कैन मेक लॉज ओवर मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। इसके ऊपर दोनों लॉ बना सकते हैं। बट हाँ, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, उसके ऊपर अगर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ प्रोसीड करता है किसके? स्टेट गवर्नमेंट के लॉ के ऊपर। बट वो अलग बात है, वो कंकरेंट का फीचर है कि कंकरेंट लिस्ट वाले लॉज में क्या होता है क्या नहीं होता। कंकरेंट लिस्ट में जिन लिस्ट पे सेंट्रल लॉ बनाता है वो हमेशा प्रोसीड करते हैं किन के ऊपर? स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर। स्टेट गवर्नमेंट्स जो लॉ बनाते हैं। ओके, सो जो ये मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, और ऐसे पोर्ट्स जिनको सेंटर नोटिफाई करता है, उन पोर्ट्स को हम मेजर पोर्ट्स बोलते हैं, और ऐसे पोर्ट्स जिन पोर्ट्स को रिकॉग्नाइज एंड नोटिफाई स्टेट गवर्नमेंट करता है, उनको हम बोलते हैं माइनर पोर्ट्स। समझ गए आप? तो जो ये सिग्निफिकेंस है ना मेजर बोलने का या माइनर पोर्ट बोलने का, दैट इज़ ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस। if the central government is administering and notifying the port, then it's called as major port, and if state government is notifying the port, then it's called as minor port. So this यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, so the central government's shipping ministry will take care of all the major ports, and the minor and intermediate ports will be taken care by the relevant department in the coastal states. ऐसा नहीं हो सकता कि कल जम्मू कश्मीर बोल दे कि भाई हम रिकॉग्नाइज या नोटिफाई करते हैं एक पोर्ट जम्मू कश्मीर में, क्योंकि नहीं हो सकता वो, क्योंकि हम कोस्टल स्टेट्स में नहीं आते हैं, हमारा कोस्ट लाइन नहीं है, तो इस वजह से हम नहीं कर सकते। ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या है, जो हमारी 9 कोस्ट लाइन स्टेट्स है, हमारी 9 कोस्टल स्टेट्स हैं, वही नोटिफाई करते हैं ये। समझ गए आप? तो मैंने आपको बता दिया 9 स्टेट्स। आपको पता था कि हमारी टोटल कोस्टल स्टेट्स कितनी हैं? 9 है, गिन सकते हैं हम। देखो, पहले गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है,
कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और बंगाल है। ये सारे 9 कोस्टल स्टेट्स है। तो ये नोटिफाई करते हैं माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट्स को। ठीक है, पीछे देखते हैं हम। तो अप्रॉक्सीमेटली जो ये ओशन रूट्स है ना, दे अप्रॉक्सीमेटली हैंडल 95% ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। जो हम इतना फॉरेन ट्रेड के बारे में बात कर रहे होते हैं ना इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो उसका 95% बाय वॉल्यूम कौन हैंडल करता है? ओशनिक रूट्स हैंडल करते हैं। और 70% बाय वैल्यू, इस यही 95% बाय वॉल्यूम जो ट्रेड होता है बाय ओशनिक रूट्स, वही उसका वैल्यू 75% ऑफ द टोटल ट्रेड जो हमारा फॉरेन ट्रेड होता है उस ओशनिक रूट्स के थ्रू, उसका कितना वैल्यू होता है? 70% ऑफ द टोटल वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे आप फिर से वही बात की, किस स्टेट के पास ज़्यादा पोर्ट्स है? टोटल हमारे पास 213 मेजर और माइनर पोर्ट्स दोनों हैं, और महाराष्ट्र के पास सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 53। बाकी किन स्टेट्स के पास कितने हैं वो ज़रूरी नहीं है, बट किसके पास सबसे ज़्यादा है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। चलो कुछ फैक्ट्स हैं हमारे इन्हीं पोर्ट्स के बारे में। आपको पहले बात तो पता होनी चाहिए, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं, उसका नाम है प्रोजेक्ट सागरमाला। इसमें वो क्या कर रहे हैं? इसमें वो प्लान कर रहे हैं कि हम तमाम पोर्ट्स को मॉडर्नाइज करेंगे। ठीक है, तो सागरमाला इज़ रिलेटेड टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोर्ट्स। ऐसा पूछ सकते हैं कि सागरमाला किसके रिलेटेड है, क्वेश्चन में आ सकता है। फिर वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, एक ऑप्शन ये भी होगा कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोर्ट्स के बारे में है क्या, तो आप टिक कर देना। ठीक है, इंडियाज़ अलंग सोसिया शिप ब्रेकिंग यार्ड, आपको पता है, इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिप ग्रेव यार्ड। तो यहाँ पे क्या होता है ना, पूरी दुनिया से ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज से जो रद्दी तरीन शिप्स होते हैं, जो ख़राब हो गए होते हैं, जिनका अब कोई काम नहीं होता है, जिनको रिटायर किया जाता है, उनका रिसाइकलिंग के लिए इंडिया में जो सबसे लार्जेस्ट शिप ग्रेवयार्ड है दैट इज़ अलंग सोसिया शिप ब्रेकिंग यार्ड। ये इंडिया में ही सबसे लार्जेस्ट नहीं है। अलंग सोसिया शिप ब्रेकिंग यार्ड इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिप ग्रेवयार्ड। ठीक है, तो ये आप याद रखना, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिप ग्रेवयार्ड इज़ इन गुजरात, अलंग सोसिया शिप ब्रेकिंग यार्ड, इट इज़ इन गुजरात। ओके, कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट इज़ द ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट इन इंडिया एंड इज़ द ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। कोलकाता पोर्ट ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया है और इज़ द ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट। रिवराइन पोर्ट समझते हैं आप क्या? तो मैं आपको समझाता हूँ। ये आप मानो ये सी है, ठीक है, ये लैंड है और ये एक रिवर आ रहा है इधर से, ये पूरा एरिया सी है। जो पोर्ट इधर सी के और जो इस कोस्ट लाइन के ऊपर, इस कोस्ट के ऊपर पोर्ट होगा ना, उसको हम सी पोर्ट बोलते हैं। और जो पोर्ट इस रिवर के अंदर होगा ना, उसको हम रिवराइन पोर्ट बोलते हैं। और जो द ओनली मेजर रिवराइन पोर्ट इन इंडिया इज़ कोलकाता पोर्ट विच इज़ अगेन द ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया। ठीक है, समझ गए ना? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कुछ चीज़ें जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, जैसे कि कांडला पोर्ट कहाँ पे है? कांडला पोर्ट है गल्फ ऑफ कच्छ में। इट इज़ द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया बाय वॉल्यूम ऑफ फ्रेट हैंडल। कितना वॉल्यूम ये फ्रेट का हैंडल करता है? ऑन दैट बेसिस इट इज़ द बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया। नाउ दिस कांडला पोर्ट हैज़ बीन रीनेम्ड एज दीन दयाल पोर्ट बाय 25 सितंबर 2017। डेट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट यू मस्ट नो दैट कांडला पोर्ट हैज़ बीन रीनेम्ड एज दीन दयाल पोर्ट। अब दूसरी बात, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को पहले बोलते थे नाहवा शिवा पोर्ट। ये अभी की जो ये है ना, ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इट इज़ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। पहले इसको क्या बोलते थे? नवा शिवा पोर्ट। अब ये इसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट एंड इट इज़ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। मर्मागोआ पोर्ट इज़ द लार्जेस्ट आयरन एक्सपोर्टिंग पोर्ट। ठीक है, और ऐसे ही इन्नौर पोर्ट जो है, इट इज़ बीन रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट एंड इज़ द ओनली पोर्ट विच हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज ए कंपनी। इन्नौर पोर्ट ऑल्सो नोन एज कमारझर पोर्ट लिमिटेड। Innor Port, also known as Kamarajhar Port Limited, is the only major port registered as company under Companies Act. ठीक है, थोड़े कुछ MCQs देखेंगे as usual. These MCQs would definitely be based on the things that we have discussed earlier. Maybe कोई चीज़ हमने नहीं बोली हो, but आप देख लो एक बार। हाँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन, एक स्टूडेंट ने लिखा था कमेंट में पिछली बार कि आप आंसर मत हाईलाइट करो, हमें थोड़ा सोचने का टाइम दो व्हेन आई एम डिस्कसिंग दिस
these MCQs with you. So now today I have not highlighted the answer. So आप guess कर लेना जब मैं ये question पढ़ रहा हूँ. National Waterway 1 connects which of the following? देखो आपने ये बिल्कुल पढ़ा है. तो National Waterway 1 क्या connect करता है इनमें से? A B C D. इलाहाबाद से हल्दिया, सादिया से डुबरी, कोल्लम से कुट्टापुरम, या नन ऑफ द अबव. क्या आंसर है इसका? बता दो, सोचो थोड़ा, सोच लिया? इलाहाबाद से हल्दिया इज़ द आंसर. ठीक है, आगे देखते हैं. द हेडक्वार्टर ऑफ इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया? चलो ये बताओ, हेडक्वार्टर कहाँ है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का? कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, नोएडा में है, फरीदाबाद में है, या कोलकाता में है? ये है नोएडा में. ठीक है. व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ नेविगेबल वाटरवेज ऑफ इंडिया? चलो बता दो. ये तो आपको बिल्कुल, देखो आपको अगर पता भी नहीं होगा ना तो भी आप ये सही कर सकते हो. ये बोल रहा है कि टोटल लेंथ ऑफ नेविगेबल वाटरवेज इन इंडिया कितना है. अगर आप खुद देखोगे ना, जम्मू कश्मीर में ही ऑलमोस्ट 400-500 किलोमीटर तक का हमारा जो नेविगेबल वाटरवेज हैं, सारे जो भी नेशनल वाटरवेज हमारे जम्मू कश्मीर के हैं ना, 4 नेशनल वाटरवेज, उनमें ऑलमोस्ट 400-500 किलोमीटर तक का नेविगेबल वाटरवे तो उधर ही होगा, उसका लेंथ. तो आप खुद देख लो, 14 किलोमीटर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता. 145 बिल्कुल नहीं आ सकता. 1450, जब कश्मीर में ही 400-500 है तो आप खुद देख लो पूरे इंडिया में कितना होगा फिर. तो इसका आंसर आएगा 14,500 किलोमीटर्स. ऐसे वैसे मैंने आपको यहाँ पे एक बात बता दी, आपको मैंने शायद डिस्कशन में नहीं बताया, हमारे जम्मू कश्मीर में 4 नेशनल वाटरवेज है. कौन है वो, कौन कौन से रिवर्स पे है, आप वो बता दोगे? कमेंट करके बता देना. 4 नेशनल वाटरवेज ऑफ जम्मू कश्मीर कौन कौन सी है. आगे बढ़ते हैं. द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इज़ लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया? तो बताओ हेडक्वार्टर कहाँ है सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का? बेंगलुरु में है क्या, पटना में है, जम्मू में है, या कोलकाता में है? कहाँ पे है? कहाँ पे है? कोलकाता में है. चलो आगे देखते हैं. हाउ मेनी नेशनल वाटरवेज इज़ जम्मू कश्मीर हैविंग? चलो ये क्वेश्चन है. कितने नेशनल वाटरवेज हैं जम्मू कश्मीर के पास? चलो वो तो मैंने अभी बता दिया, 4 वाटरवेज हैं हमारे जम्मू कश्मीर के पास. नेशनल वाटरवेज हमारे पास 4 है. अच्छा चलो ये बताओ, हाउ मेनी ऑपरेशनल नेशनल वाटरवेज इज़ जम्मू कश्मीर हैविंग? चलो इन 4 में से ऑपरेशनल वाटरवे कौन सा है, कितने हैं हमारे पास? बताओ. ये ट्रिकी क्वेश्चन है, मेरे को बता दोगे? ये कमेंट्स में बता देना आप. 1 है, 2 है, 4 है, चारों के चारों ऑपरेशनल है क्या, या एक ही ऑपरेशनल है, या 2 है, या 6 है? पॉज करके थोड़ा सोचो, या अगर नहीं पता तो क्या कर सकते हैं अब ज़्यादा टाइम इस पर मत लगा देना. मैं आंसर बताता हूँ. एक ही ऐसा ऑपरेशनल नेशनल वाटरवे है हमारे पास जो चिनाब रिवर पे है. ठीक है, आगे देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ मोस्ट सुइटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की मटीरियल? चलो ये बता दो कि कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऐसा है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुइटेबल है फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की मटीरियल. लैंड ट्रांसपोर्ट है क्या, रेलवे है क्या, वाटर है क्या, एयर है क्या? कौन सा है भाई? वाटर ट्रांसपोर्ट. वेरी गुड, अभी तो पढ़ा था यार. चलो थैंक यू, आज के लिए इतना ही है. थैंक्स अ लॉट.